We welcome you all once again to our weekly meetings. आप सबका जो हमारी हफ्ता की सभा होती है इसमें स्वागत है। And today we're going to speak about the calling for every Christian not to quarrel. और आज जो हम वचन जिसे मनन करेंगे कि ये एक बुलाहट जिसमें हर मसीह के लिए ये है कि वो झगड़ा ना करे। When the Apostle Paul wrote to Timothy in his second letter, जब पौलुस ने तिमोथी को दूसरी पत्री में लिखा in chapter 2 verse 24 onwards, from verse 23 onwards, he writes, दूसरे अध्याय की 23वीं आयत से आगे वो ऐसे लिखते हैं, don't have anything to do with foolish and stupid arguments, पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे, for you know they produce quarrels, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े होते हैं। and the Lord's servant must not quarrel. और प्रभु के दास को झगड़ालू होना नहीं चाहिए, Instead, he may be kind to everyone, able to teach, not resentful. पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। Those who oppose him, he must gently instruct. तो हमारा विरोध करते हैं उनको हमें बड़ी नम्रता से उनको शिक्षा देनी है, In the hope God grant them repentance, कि इस आशा में कि प्रभु उनको मन फिराव की ओर का मन देगा, leading them to the knowledge of the truth, कि वे भी सत्य को पहचाने, that they come to their senses ताकि वो अपनी समझ में वापस आए and escape from the trap of the devil who has taken them captive to do his will. और सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। Now, from this passage, we understand that when we as God's people speak the word of God, तो इस भाग से हम समझते हैं कि जब परमेश्वर के हम जो लोग हैं, जब परमेश्वर के वचन से बोलते हैं, and every Christian is called to speak the word of God. और हर एक मसीह को बुलाया गया है कि परमेश्वर के वचन से बात करे। In 1 Peter 4:11 says, if anyone speaks, he must do it as one speaking the very words of God. और पहला पत्रस चौथा अध्याय उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि जब कोई बोले तो ऐसे बोले जैसे परमेश्वर की ओर से बोल रहा है। And also we speak the word of God the way the Lord would speak the word of God. और हम ऐसे बोले जैसे परमेश्वर जैसे वचन बोलता है वैसे हमें बोलना चाहिए। He spoke gracious words, Luke 4:22. लूका 4:22 में लिखा है, 32 में 22 में लिखा है कि प्रभु ने बड़े अनुग्रह के शब्द बोले। And verse 32 says he spoke with authority. और 32वीं आयत में लिखा है उसने बड़े अधिकार से बोला। He spoke gracious words, spoke with authority. उसने अनुग्रह के शब्द बोले और बड़े अधिकार से बोले। And he spoke what the Father told him to speak. और उसने वो बोला जो उसके पिता ने उसको बोलने के लिए बोला था। In John 12:50 he says, whatever I say, what the Father has told me to say. और यूहन्ना 12:50 में लिखा है कि वो बोलता है कि मैं वो बोलता हूँ जो मेरे पिता ने मुझे बोलने के लिए बोला है। And that's why when he spoke, people are amazed at his teaching. और इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह बोलते थे तो लोग अचंभा करते थे उनकी शिक्षा पे। They are amazed because he spoke gracious words. वो अचंभा करते थे क्योंकि वह अनुग्रह के शब्द बोलते थे। They are amazed because he spoke with authority. और अचंभा करते थे कि बड़े अधिकार से बोल रहे हैं। They are amazed the way he spoke because he did not undergo any formal theological training. और अचंभा करते थे कि ये ऐसे शब्द बोल रहा है जबकि इसने कोई ऐसी शिक्षा भी नहीं प्राप्त करी। And in John chapter 7 verse 15, that where the Bible talks about how when he spoke, they were amazed because he didn't have any proper theological training to speak. और यूहन्ना 7:15 में यहूदी जो है बड़ा अचंभा करने लगे कि ये बिना पढ़े लिखे ऐसी विद्या कहाँ से इसको आ गई। And they had a question: how did this man get such learning without having studied? और वो अचंभा करके कहने लगे कि इसे बिना पढ़े विद्या कैसे आ गई। And verse 16 he gives the answer. और 16वीं आयत में उसका उत्तर भी है, My teaching is not my own. मेरा उपदेश मेरा नहीं है, It comes from him who sent me. पर मेरे भेजने वाले का है। If anyone chooses to do the will of God, he will find out whether my teaching comes from God or whether I speak on my own. यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह उस उपदेश के शिक्षा विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। And all of us are also called to speak the same way. और हम सबको भी इसलिए बुलाया गया कि हम भी इसी तरीके से बोले। When we speak the word of God, our authority is knowing that this is the word of God, not our word. और जब बोलते हैं तो हमारा अधिकार ये है कि हमें समझना चाहिए कि ये मेरा शब्द नहीं परमेश्वर का वचन है। We're supposed to speak with grace and love. और हमारे को बड़े अनुग्रह से और प्रेम से बोलना है। And we are to listen to God and speak out. और हमें परमेश्वर की सुननी है और वो उसको हमें बोलना है। When this becomes a practice in our lives, और जब ये हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, तरीका बन जाता है,
and people oppose us, और लोग हमारा विरोध करते हैं, we should not quarrel. तो हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। And the Lord's servant must not quarrel. और परमेश्वर के सेवक को कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। It's simple instruction, yet so profound. एकदम सीधी सादी शिक्षा है और फिर भी इतनी सामर्थ्य है। And somehow we think that quarreling is a human trait. We all quarrel. और हम जब बोलते हैं झगड़ा की बात तो होता है, तो मनुष्य का स्वभाव है, सभी झगड़ा करते हैं। It seems like a habit with many people. और कई लोगों की तो आदत ही बन जाती है। Everybody quarrels sometime or the other. सभी कोई कभी ना कभी झगड़ा करते ही हैं। And sometimes to prove your point, we emphasize that point, we quarrel. और कभी अपनी बात को सही साबित करने के लिए हम झगड़ा करते हैं। The scripture is very, very clear. The Lord's servant must not quarrel. और परमेश्वर का वचन बड़ा साफ सफाई से कहता है कि परमेश्वर के सेवक को झगड़ा नहीं करना चाहिए। So how do we avoid quarreling? तो हमें इस झगड़े को कैसे इससे बचना है? Now, when it comes to people opposing us, there are two kinds of people who oppose us. जब हम हमारा विरोध करने वाले लोगों की बात करते हैं तो दो तरीके के लोग होते हैं जो हमारा विरोध करते हैं। One are those who do not know the Lord. एक तो वो हैं जो परमेश्वर को जानते नहीं है। Others are those who know the Lord, but they are different doctrine and different way they look at the scriptures. और दूसरे वो हैं जो परमेश्वर के वचन को जानते तो हैं, परमेश्वर को जानते तो हैं, पर वचन को वो दूसरे तरीके से देखते हैं। Whoever it is, we should not quarrel. चाहे कोई भी क्यों ना हो, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। In this passage, 2 Timothy chapter 2, 24 to 26, we understand when they oppose us, these people are under the devil's control. और हम दूसरा तिमोथी दूसरे अध्याय की 24 से 26वीं आयत में पढ़ते हैं कि जब ये लोग विरोध करते हैं तो ये अपनी ओर से नहीं पर शैतान के बहकावे में आके ऐसा करते हैं। Any opposition to God's pure word can only be from the devil. परमेश्वर के शुद्ध वचन का विरोध वही करेगा जो शैतान है। Let's first take the example of unbelievers who oppose us. पहले हम अविश्वासियों के ऊपर ध्यान देंगे जो हमारा विरोध करते हैं। Then I talk about believers. फिर बाद में हम विश्वासियों की भी बात करेंगे। When it comes to unbelievers, you must understand they are under the devil's control till they turn to Jesus. और जो विश्वासियों की बात करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि वो शैतान के फंदे में है जब तक वो मसीह की ओर फिर नहीं जाते। In 1 John 5:19, John writes, पहला यूहन्ना 5:19 में यूहन्ना लिखता है, we are children of God and the whole world is under the control of the evil one. हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। So when they oppose what we say, it's not them, it's the fact that the evil one works through them and tries to provoke us. तो जब वो ऐसा करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये वो नहीं है, पर जो दुष्ट है, शैतान है, वो उनको प्रोत्साहन देता है, उकसाता है कि वो हमारा विरोध करें। They're under the devil's influence. वो शैतान के वश में है। Our enemy is not people, our enemy is the evil one. हमारा जो विरोध है, हमारे जो वैरी हैं, वो लोग नहीं है, पर वो शैतान है, दुष्ट है। And the evil one knows that what we are speaking is the truth. It's from the scriptures. और जो दुष्ट है, शैतान है, वो जानता है कि जो हम बोल रहे हैं वो सच्चाई है, वचन से बोल रहे हैं। And he uses these people to provoke us that we go away from the word of God and go into arguments and discussions and find fights. और वो हमें उकसाता है लोगों के द्वारा से, ताकि हम जो है वचन से दूर हो जाएं और झगड़े में फंस जाएं और इन चीजों में रह जाएं। He will try to provoke us for us to lose focus on what God wants us to speak. वो हमारे को प्रोत्साहन देता है, परेशान करते हैं, ताकि हम जो है परमेश्वर के वचन से दूर हो जाएं और जो परमेश्वर हमसे चाहता है वचन से बोलना, उससे हम दूर हो जाएं। When people get angry and provoke us, it's not them, it's a spirit behind them that is provoking us through them. तो लोग जो हमारा विरोध करते हैं तो वो लोग नहीं है, पर वो आत्मा है जो उनके अंदर से काम करती है, जो हमारा विरोध करती है। They are under devil's control who has taken them captive to do his will. वो शैतान के फंदे में है और शैतान ने उनको अपने जाल में फंसा रखा है कि वो उसकी मनसा को, उसकी इच्छा को पूरा करें। If you are not careful and if you get carried away by what they say and start quarreling, और अगर हम ध्यान नहीं दें और उन बातों में फंस जाएं जो वो कह रहे हैं, हम और उससे झगड़ा शुरू कर दें, it will become angry after some time. तो थोड़ी देर के बाद जो है गुस्सा आ जाता है। First it starts with hurt, then insult, then anger, and then we speak loose words. पहले हमारे को जो है दुख पहुंचता है, फिर हमारी शर्म की बात हो जाती है, फिर हमें गुस्सा आता है, फिर हम जो है गुस्से में बुरे शब्द बोलने लगते हैं। Now in Ephesians chapter 4, 26-27 we read, इफिसियों 4 अध्याय 26 और 27वीं आयत में हम पढ़ते हैं, Paul writes to the church and says, in your anger do not sin. पौलुस जो है कलीसिया को कहता है कि क्रोध में पाप मत करो। Do not let the sun go down while you are still angry and do not give the devil a foothold. क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक अपना तुम्हारा क्रोध ना रहे कि और शैतान को अवसर ना दो।
When people try to provoke us and we get angry, then we are giving the devil a foothold. अगर लोग हमारे को प्रोत्साहन देते हैं, चिढ़ाते हैं और हम गुस्से हो जाते हैं और हम झगड़ा करते हैं, तो हम शैतान के जाल में फंस गए। Already the other person under devil's control, and when we lose our cool, we also come under devil's control because we give him a foothold. वो व्यक्ति जो हमसे झगड़ा कर रहा है वो तो पहले ही शैतान के वश में है, और अगर हम भी झगड़ा करने लगेंगे तो हम भी शैतान को अपने जीवन में पैर रखने की जगह दे देंगे। And then what happens? The devil is now playing puppet show between the believer and the unbeliever. और शैतान जो फिर क्या करता है, एक कठपुतली का नाटक शुरू कर देता है विश्वासी में और अविश्वासी के बीच में। But we are wise not to react to provocation and anger against us. तो हमें बड़ा बुद्धिमान होना है कि हम ऐसे उस्कावे में ना आए और ऐसे झगड़े में ना फंस जाएं। So how do we handle that? कैसे इसको झेलना है? We have to ask God for wisdom. हमें परमेश्वर से इसके लिए बुद्धि मांगनी है। Wisdom will teach us to be patient. और बुद्धि जो है हमारे को समझ देगी कि हम धैर्यवंत हो जाएं। Wisdom will teach us to overlook an offense. और बुद्धि हमारे को हमारे विरोध में जो अपराध हुआ है उसको हम नजरअंदाज करने में हमारी मदद करेगी। Proverbs 19:11 says, "A man's wisdom gives him patience, is to his glory to overlook an offense." और नीति वचन 19:11 में लिखा है कि परमेश्वर की जो बुद्धि है, वो परमेश्वर की बुद्धि उसको समझ देती है और लोगों की जो भरमाने वाली बातें हैं, उकसाने वाली बातें, उसको भूल जाता है। When people try to provoke us, then they are actually under devil's influence, I told you. और हमने बताया कि जब लोग हमसे झगड़ा करते हैं तो वो शैतान के वश में है। They have to overlook that. उसको नजरअंदाज कर देना है। Don't take it personally. Don't take it to heart. उसको व्यक्तिगत तौर पे लेके अपने दिल में नहीं ले लेना। Remember, they are under devil's control and he is trying to provoke us. We should not cooperate with the evil one. आपको समझ लेना चाहिए ये व्यक्ति का दोष नहीं है, इसमें शैतान उसको उकसा रहा है और ये हमको उसमें नहीं फंसना है। A man's wisdom gives him patience, is to his glory to overlook an offense. और परमेश्वर की बुद्धि उसको ये है कि उसकी महिमा इसमें है कि वो उस दुष्ट के जो अपराध है उसको नजरअंदाज कर दे। That's why the Apostle Paul, when he spoke about the ministry of evangelism, और इसीलिए पौलुस जब ये सेवकाई जो वचन को बांटने की, सुसमाचार बांटने की सेवकाई की बात करता है, in Colossians chapter 1 verse 28, he writes, कुलुसियों पहला अध्याय उसकी 28वीं आयत में ऐसे लिखता है, "We proclaim him, admonishing and teaching everyone with all wisdom." और कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह की सिद्ध करके उपस्थित करें। सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। In his preaching, he is proclaiming Jesus, proclaiming him, not any philosophy, not a religion, not a church, but Lord Jesus Christ. और अपने प्रचार में, सिखाने में वो किसी और चीज को नहीं सिखा रहा, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। He proclaimed him, admonishing and teaching everyone with all wisdom. और वो परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, उनको सारी बुद्धि और सिद्ध ज्ञान में उनको बढ़ाता जा रहा है। But when we share the gospel, we must understand that everyone will not accept the gospel. जब हम सुसमाचार बांटते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए पहली बात कि हर एक ये सुसमाचार को स्वीकार नहीं करेगा। Some will accept, some will reject, some will get angry, some will provoke us. कुछ तो स्वीकार करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ गुस्सा भी हो जाएंगे, कुछ हमारे को चिढ़ाएंगे, हमारे को गुस्सा भी दिला देंगे। Some will reject us. और कई लोग तो हमारा तिरस्कार ही कर देंगे। In Luke 10:16, Jesus tells the disciples, और लूका 10:16 में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बताते हैं, "If anyone listens to you, he listens to me. कि अगर कोई तुम्हारी सुनता है तो वो मेरी सुनता है। If anyone rejects you, he rejects me. अगर तुम्हें तुच्छ जानता है तो मुझे तुच्छ जानता है। And the one rejects me rejects the one who sent me." और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। We should remember that we are only spokesmen and spokeswomen of God. तो हमें समझ लेना चाहिए हम तो सिर्फ परमेश्वर के प्रवक्ता हैं, हम चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, परमेश्वर की ओर से प्रवक्ता हैं हम लोग। We speak the pure word of God. It's God's word, not our word. We shouldn't get offended when they oppose. हमें तो ये समझना चाहिए हम तो परमेश्वर का वचन, शुद्ध वचन दे रहे हैं। अगर वो स्वीकार नहीं करता, गुस्सा होता है, तो हमारे को उसका विरोध नहीं करना है। So how do you stop a potential quarrel? तो एक होने वाले झगड़े को हम कैसे रोक सकते हैं? One is to ask God wisdom and not react and respond in gentleness and respect. पहली बात तो हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है कि हम उसके ऊपर प्रतिक्रिया न दे, बड़े आदर के साथ, कोमलता से उसको उत्तर दें। But if the other man keeps on trying to provoke us, we can put a stop to that. अगर वो दूसरा व्यक्ति हमारे को चिढ़ाया जा रहा है, बोले चले जा रहा है, तो हमारे को उसको रोक देना है। How do you do that? उसको कैसे रोक सकते I हैं? tell you what I do.
क्या करते हैं वो बताते हैं। When someone tries to provoke me and I share the gospel, जब भाई उसको सुसमाचार बांटते हैं किसी व्यक्ति को और वो भाई को उत्तेजित करने लगता है, when I tell them, see, what I've shared with you is God's word, I believe it's God's word for you. भाई उसको बताते हैं, भाई जो मैंने तेरे को बांटा परमेश्वर का वचन है, मेरा विश्वास ये है कि परमेश्वर का वचन मैंने तुझे बांटा है, But what I'm saying is from the Bible, which is God's word. और जो मैं तुझे बता रहा हूँ ये परमेश्वर के वचन से, बाइबल से बता रहा हूँ, And this salvation is in Jesus Christ. और उद्धार प्रभु यीशु मसीह में ही है। This is what I've shared with you now. ये मैंने आपके साथ बांटा है अभी। If you don't like it, I'm not going to fight with you about it. अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है तो मैं आपसे इस बात पे झगड़ा तो नहीं करूंगा, But I want to suggest to you, पर आपको ये समझाना चाहता हूँ you remember so many things in life, कि आप जीवन में बहुत सारी बातों को याद रखते हैं, so many experiences, so many incidents in life you remember. अपने जीवन में बहुत सारी बातों को, बहुत सारी घटनाओं को आप याद रखते हैं। Remember this name, इस नाम को जरूर याद रखना, Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह। Simple name. नाम याद रखना Very easy to remember this name, Jesus Christ. बड़ा आसान भी है याद रखना इस नाम को, प्रभु यीशु मसीह। He is your savior. तेरा उद्धार करता है। You call upon his name, you'll be saved. अगर तू उस नाम को बुलाए, पुकारेगा तो तेरा उद्धार हो जाएगा। Just remember this name. इस नाम को सिर्फ याद रख लेना। I'm going away now. I'm not going to fight with you अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तेरे से झगड़ा नहीं करूंगा, because I'm God's servant, and as God's servant, I should not quarrel. क्योंकि मैं परमेश्वर का सेवक हूँ और परमेश्वर के सेवक को झगड़ा नहीं करना चाहिए। So I'm going away now. I won't fight with you. इसलिए मैं जा रहा हूँ अभी और मैं तेरे से झगड़ा नहीं करूंगा। But please do yourself a favor. अपने लिए एक काम जरूर कर लेना, Remember this name. इस नाम को जरूर याद रख लेना। Any time in your life, if the world you feel is cruel to you, people let you down, there's no hope for you, you're facing death, and there's no hope, you call upon that name, you will be saved. और जब भी जीवन में अगर तेरे को लोग परेशान करें, तो बड़े परेशानी में मृत्यु का सामना करना पड़ रहा हो, तो याद रखना इस नाम को बुला लेना और इस नाम को पुकारने से ही तेरा उद्धार हो जाएगा। Because the Holy Scriptures say, everyone who calls upon the name of the Lord will be saved. Romans क्योंकि वचन में लिखा है कि जो कोई भी प्रभु के नाम को पुकारेगा उसका उद्धार हो जाएगा। Remember this name. इस नाम को याद रखना। I'm going away now. Don't forget this name. मैं अब जा रहा हूँ, इस नाम को मत भूलना। And it is between you and God. अब ये तेरे और परमेश्वर के बीच में है। Even a few seconds before you die, call upon that name, you will be saved. I will see you in heaven. अगर तू मरने से कुछ क्षण पहले भी इस नाम को पुकार लेगा तो तेरा उद्धार हो जाएगा और मैं तेरे को स्वर्ग में मिलूंगा। I may not see you again in this world. I don't know. मैं नहीं जानता कि मैं तेरे को इस संसार में मिलूंगा, क्योंकि मैं तो जा रहा हूं यहाँ से। But if you call upon that name, I will see you in heaven. पर अगर तू इस नाम को पुकारेगा तो तेरा उद्धार हो जाएगा और मैं तेरे को स्वर्ग में मिलूंगा। If you never call upon that name, I may never see you again. अगर तू इस नाम को कभी नहीं पुकारेगा तो हो सकता है मैं तेरे को कभी मिलूं ही ना। And once I was talking to one person from some other faith, from a very militant faith, and he got very angry with me. और एक दिन भाई जो है एक ऐसे धर्म के व्यक्ति से बात कर रहा था जो बड़ा झगड़े वाला धर्म था, बड़ा हथियार वाला, तो उससे जो बात कर रहे थे तो वो बड़ा गुस्सा हो गया। So I told him, remember this name, I'm going away, I won't fight with you. तो भाई ने उसको बता दिया, भाई मैं जा रहा हूँ, मैं झगड़ा नहीं करूंगा, तू बस नाम को याद रखना। When I told him that, he got even more angry. पर जब उसको ये बात बताया तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। He said, I don't know about that name, I will remember you. वो कहता मैं उस नाम को तो याद नहीं रखूंगा पर तेरे को जरूर याद रखूंगा। What is the point remembering me? It doesn't make any difference. मेरा नाम याद करके रखेगा, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। And कोई फायदा नहीं है। But you remember his name, call upon his name, you will be saved. तो प्रभु के नाम को याद रख, वो तब तेरा उद्धार होगा, उसी से तेरा फायदा होगा। And there is no other name by which you can be saved. इसके अलावा और कोई नाम नहीं है जिससे तेरा उद्धार हो सके। So that's how we put a stop to potential quarrel. तो इस तरह से हम एक होने वाले झगड़े को रोक सकते हैं। The good news for us is after we speak and go away, एक हमारे लिए बड़ी अच्छी बात यह है कि जब हम बोल के चले जाते हैं, that's not the end of the whole story. पूरी कहानी का अंत वही नहीं हो जाता। The Holy Spirit will keep on testifying. पवित्र आत्मा जी गवाही देते रहेंगे। In John chapter 15 verses 26 and 27, Jesus says, यूहन्ना 15वां अध्याय 26 और 27वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, when he, the Spirit of truth, comes, परंतु जब वो सहायक आएगा, whom I will send to my Father, the Spirit goes up from the Father, जिससे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, he will testify about me. अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है वह मेरी गवाही देगा। But you also must testify because you have been with me from the very beginning.
और तुम भी गवाह हो क्योंकि तुम आराम से मेरे साथ रहे हो। So we are never alone when we share the gospel. तो हम कभी भी अकेले नहीं होते जब हम सुसमाचार बांटते हैं। The Holy Spirit testifies with us. पवित्र आत्मा जी हमारे साथ गवाही देते हैं। While we are sharing the word, the gospel, He will give us words to speak to the other person. और जब हम सुसमाचार बांट रहे होंगे परमेश्वर का आत्मा हमें वचन शब्द देगा कि हम उस व्यक्ति को बांट सकें। After we go away, the Holy Spirit will keep on testifying. और जब हम चले जाएंगे उसके बाद भी पवित्र आत्मा जी उसके साथ उसको गवाही देते रहेंगे। We keep reminding them about the fact that you went and shared the gospel, and that is true. और वो ये बताते याद दिलाते रहेंगे उसको कि जो व्यक्ति तुझे संदेश देके गया वो सत्य है। He will testify to the truth. वो सत्य की गवाही देता रहेगा। So don't be discouraged if you find someone who share the gospel, they reject gospel, they fight with you, you go away, and you think, what have I done? Have I messed up the whole thing? तो आप बिल्कुल निराश ना हो कि आप जाए किसी को सुसमाचार दे, आपसे झगड़ा करे और फिर वाद विवाद हो जाए, फिर आप कहें कि आपने सब गड़बड़ कर दिया। ऐसा नहीं है। It could be that a few minutes before he dies, Holy Spirit will remind him, that day that brother came and spoke to you, that is truth, call upon Jesus' name. हो सकता है कि मरने से कुछ समय पहले ही, क्षण पहले पवित्र आत्मा जी उसको याद दिलाएं कि एक दिन तेरे पास एक ऐसा व्यक्ति आया था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया था, उस नाम को पुकार, तेरा उद्धार हो जाएगा। And like the thief on the cross, he might tell the Lord Jesus, Lord, remember me. और जैसे वो चोर जो क्रूस पे था प्रभु यीशु मसीह के साथ, वो कहा, प्रभु मुझे स्मरण रखना। Lord, I'm calling upon your name, Lord. मैं प्रभु तेरे नाम को पुकार रहा हूँ। And he'll be saved. और उसका उद्धार हो जाएगा। Maybe we do not know about it while living in this world. We may not see him in this world. हो सकता है संसार में हम उसको ना देख पाए, दोबारा मुलाकात ना हो। But when we go to heaven, it's possible that some of these people who fought with us would have received Christ independent of us and gone to heaven before we go to heaven. और पर हो सकता है जब हम स्वर्ग जाएं तो हम वहां पे उन लोगों को मिले जिनको हमने गवाही दी थी, और हो सकता है हमसे पहले ही स्वर्ग पहुंच गए हों। And there'll be a very surprising reception committee waiting for us when we go to heaven. और बड़ी अचंभे की बात होगी जब हम जाएंगे, देखेंगे कि वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। And it'll be such a joy for us to see them in heaven. और कितने आनंद की बात होगी हमारे लिए जब हम उनको स्वर्ग में देखेंगे। Let me now talk about how to deal with believers who oppose us. अब हम देखेंगे कि अविश्वासियों के लिए, अगर एक विश्वासी हमारा विरोध करता है, Even a believer, when he's not very sensitive to the Holy Spirit's voice, can be a spokesman of the evil one. और एक विश्वासी भी अगर वो शैतान का प्रवक्ता बन सकता है। If we are not careful, we can be influenced by the evil spirits putting thoughts in our minds. अगर हम चौकन्ने ना रहेंगे, नहीं रहेंगे, तो हो सकता है जो शैतान है वो उनके दिमाग में भी अपने विचार डाल दे। And sometimes you find even among believers there's a disagreement of doctrines and different arguments take place. और हम देखते हैं विश्वासियों के बीच में भी सिद्धांतों के ऊपर या किसी बात पे ऐसा वाद विवाद हो जाता है। When Paul writes to Timothy and says, those who oppose him must gently instruct. और तिमोथी को पौलुस कहता है कि अगर जो तुम्हारा विरोध करते हैं उसका कोमलता से उनको शिक्षा दो। Those who oppose can also be believers. और जो हमारा विरोध करते हैं वो विश्वासी भी हो सकते हैं। Who at that point of time are caught up with the evil one's teaching and his influence. और उस समय वो हो सकता है शैतान के वश में, उसकी झूठी शिक्षा के जाल में फंस गए। So how do you handle difference of opinion about doctrines and quarrels about doctrines? हम विश्वासियों के जो सिद्धांत के बारे में जो वाद विवाद है उसको हम कैसे उसका सामना कर सकते हैं? In 1 Corinthians 11:19 we read. पहला कुरिन्थियों 11:19 में हम पढ़ते हैं। Paul writes to the church in Corinth. पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है, No doubt there have to be difference among you to show who has God's approval. क्योंकि विधर्म भी तुम में अवश्य होंगे, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे निकले हैं वे प्रकट हो जाएं। It's not the will of God that we have difference among us. ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हमारे में वाद विवाद हो जाए। He wants us to be of one heart and one mind. परमेश्वर चाहता है कि हम एक मन एक हृदय के हों। The first century church in Jerusalem, very interestingly, Acts 4:32 says they were all of one heart and one mind. और बड़ी खूबसूरती की बात है कि पहली शताब्दी की जो कलीसिया थी वो लिखा है प्रेरितों का काम 4:32 में कि वो एक मन और एक चित्त के थे। But later on, the difference came about in the church. और बाद में उनके बीच में वाद विवाद आ गए। So it is possible there are differences among the body, among the believers. तो ये बहुत मुमकिन है कि विश्वासियों के बीच में भी कोई वाद विवाद हो जाए। But the point is that this is not the will of God. It's a reality of Christian faith that among us there are differences, but it's not the will of God. ये हो सकता है ऐसा हो, पर ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हमारे एक विश्वासियों के बीच में वाद विवाद हो।
So how do we handle when people oppose our faith and our beliefs because they have some other understanding of the Bible? तो अब हम कैसे उस व्यक्ति का सामना करें जो हमारे विश्वास का विरोध कर रहा है क्योंकि वो वचन को दूसरे तरीके से समझ रहा है? Again, we should not quarrel. फिर भी हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। In the book of Philippians, 3rd chapter, के तीसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं, verse 15, 14, 15, we read, उसकी 14वीं और 15वीं आयत में हम पढ़ते हैं, how as mature Christians, how we deal with this issue. कैसे हमें एक परिपक्व विश्वासी की तरह हमें कैसे इन चीजों का सामना करना है। All of us who are mature should take such a view of things. If on some point you think differently, even that God will make clear to you. लिखा है कि सो हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें कि यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। Only you must live up to whatever you already believe in. सिर्फ हमारे को जो उसने हमें सिखाया है, विश्वास किया है, उसके अनुसार हम जिएं। Now, in my ministry, I minister in different churches, different denominations. और भाई तो अलग अलग कलीसिया में, अलग अलग संस्थाओं में वो वचन बांटते हैं। In fact, when I look at the previous ministry, and I keep a record of where all I spoke all these years. और भाई जहां जहां इतने सालों में उन्होंने वचन दिया, उस सब के बारे में उन्होंने लिखा हुआ एक जगह। And I spoke in at least 110 different denominations. और भाई ने करीब 110 अलग अलग संस्थाओं में वचन दिया है। And they have different doctrines sometimes. और उन सब की अलग अलग मान्यताएं, वचन को अलग अलग तरीके से मानते हैं। But I speak the truth as I believe to be the truth in love. और भाई वचन को जो विश्वास करते हैं, सच्चाई समझते हैं, वो प्रेम से उनको बांटते हैं। And I don't compromise on the truth. और सच्चाई से कोई समझौता नहीं करते। I don't use deception. I don't distort the word of God. और कोई धोखा या वचन को तोड़ मरोड़ के नहीं बताते। But set forth the truth plainly before people. बड़ी सफाई से, साफ तरीके से वचन परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाते हैं। As much as I can. जितना भाई से मुमकिन होता है। But then even then there are people who oppose. और फिर भी लोग ऐसे हो जाते हैं, कई लोग जो विरोध करते हैं। The Lord taught me don't fight with them. पर परमेश्वर ने भाई को सिखाया है झगड़ा नहीं करना। So tell them, see, this is what I believe. भाई बताते हैं, भाई देखो मैं ये विश्वास करता हूँ। If I am wrong, God will convince me I am wrong. If you are wrong, God will convince you. Let us not fight about it. कि अगर मैं गलत हूँ, परमेश्वर मुझे सिखाएगा, बताएगा तू गलत था। अगर आप गलत हैं, परमेश्वर आपको सिखाएगा। हम झगड़ा नहीं करते। And sometimes people oppose my teaching itself. They don't even teach God's word. They say. और वो कई लोग तो भाई की शिक्षा का विरोध करते, कहते तू तो परमेश्वर का वचन बोलता है, से बताता ही नहीं है। Once I spoke in Bangalore and someone came and told me, don't share from God's word. You are an evangelist. You should not go into teaching ministry. और एक बार भाई बेंगलोर में देरते बोले, तुम परमेश्वर के वचन से मत बोलो, तुम सेवकाई में, तुम जो है तुम्हें तो सुसमाचार की सेवा में जाना चाहिए। Other place in Nairobi, one man got angry with me. He said, you are a evangelist, you are not a teacher. So, no, other way around. You are a teacher, not an evangelist, so don't share the gospel. और एक बार नैरोबी में दूसरा व्यक्ति भाई के गुस्सा हो गया कि तू परमेश्वर का शिक्षा देने वाला है, तू सुसमाचार नहीं बांट। So one person said, don't share gospel, teach the word. Other says, don't teach the word, share the gospel. और एक बोलता है कि भैया तू वचन मत बांट, सुसमाचार दे। एक कहता है सुसमाचार मत बांट, वचन दे। Whom to listen to? अब किसकी बात मानूं? Very simple, listen to the Lord, that's all. तो बड़ी साधारण सी बात है, परमेश्वर की सुनेंगे। By the grace of God, I am very clear about my calling. परमेश्वर के अनुग्रह से भाई अपनी बुलाहट में बिल्कुल साफ हैं। I am called to be an evangelist and also a Bible teacher. भाई को सुसमाचार प्रचारक के तौर पे और वचन की शिक्षा देने के लिए भी बुलाया गया है। Sometimes sharing gospel to unbelievers, sometimes teaching the word to believers. और कई बार अविश्वासियों को सुसमाचार देते हैं और कई बार वचन जो विश्वासी हैं उनको वचन की शिक्षा देते हैं। Some accept, some reject. कुछ स्वीकार करते हैं, कुछ तिरस्कार कर देते हैं। But I shouldn't take it personally and get upset by it. पर इसको व्यक्तिगत तौर पे लेके उससे निराश नहीं होना। And when you speak the truth and don't compromise on the truth, people get angry. और जब आप सच बोलते हैं और सच्चाई से कोई उसमें समझौता नहीं करते तो कई बार लोग नाराज हो जाते हैं। Lord Jesus Christ told his own brothers. और यीशु मसीह ने अपने खुद के भाइयों को कहा। His brothers, he had 4 brothers. At a particular point of time, they were not believers yet. और प्रभु यीशु मसीह के 4 भाई थे और एक समय ऐसा था जब उनका उद्धार नहीं हुआ था। When the Feast of Tabernacles was taking place, that time they were not believers. What was taking place? Feast of Tabernacles. अच्छा, जब एक फसह का पर्व चल रहा था, टेबरनाकल्स, अच्छा वो कोई त्योहार चल रहा था, उस समय उनका उद्धार नहीं हुआ था। The 7th chapter of John we read that. यूहन्ना के 7वें अध्याय में हम इसको पढ़ते हैं।
So brothers, दूसरे अध्याय में his brothers tell him, why don't you go and show yourself in Jerusalem? और उसके भाइयों ने कहा तू जाके यरूशलेम में अपने आप को क्यों नहीं दिखाता? Let them see who you are. Go and show yourself there. और मंडपों का पर्व था, उसमें कहा कि तुम जाके अपने आप को दिखाओ। For they were not believers. तो विश्वास नहीं करते थे। The Lord tells them, my time has not yet come. For you, any time is right. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा समय अभी नहीं आया है, मेरा जब समय आएगा तो मैं प्रकट करूंगा। And for you, any time is right. For me, I go by the timing of the Father. तुम्हारे लिए तो जो भी समय है सब सही है, पर मैं तो मेरे पिता के ने जो समय रखा है उसके अनुसार चलूंगा। Then 7th verse he says to them, brothers, और वो 7वीं आयत में अपने भाइयों को कहते हैं, John 7:7, 7 में, the world cannot hate you, but the world hates me because I testify what it does is evil. जगत तुमसे वैर नहीं करता, परंतु वह मुझसे वैर करता है क्योंकि मैं उनके विरोध में यह गवाही देता हूं कि तुम्हारे काम बुरे हैं। So he didn't compromise on good and evil. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कोई समझौता नहीं किया गलत और सही में। And people hated him for that. और इस कारण से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से घृणा करी। We as God's son, when we speak the truth in love, even then people hate us. और हम जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर का वचन से बोलते हैं, फिर भी लोग हमसे घृणा करते हैं। We shouldn't try to justify us. और हमें अपने आप को सही साबित करने की जरूरत नहीं है। And even believers don't have to press your point across, put a point across, live according to what you believe, and God will vindicate us. और हमें अपने विश्वासी भाइयों से भी ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करने की, मेरी बात को मानो ही मानो, हमें अपने विचार को रख देना और बाकी प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है। In Psalm 135 verse 14 it says, God will vindicate us. और भजन 135 उसकी 14वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर जो है खुद हमारा को छुड़ाएगा। God will vindicate his people, he will have compassion on his servants. यहोवा तो अपनी प्रजा का न्याय चुकाएगा और अपने दासों की दुर्दशा पर देखकर तरस खाएगा। We don't have to convince people that we are right. God will convince them that we are right. हमें लोग अगर हम सही हैं तो हमें लोगों को ज्यादा जोर नहीं लगाना उनके ऊपर कि वो हमारी बात को माने। परमेश्वर अपने आप उनके ऊपर प्रकट करेगा। I face many people come and question my doctrine, so I just tell what the Bible says and leave it. और बहुत से लोग भाई के सिद्धांतों पे आके तर्क वितर्क करते हैं। भाई कहते अपना विचार परमेश्वर की ओर के वचन से बता देते हैं और छोड़ देते हैं। Because only Holy Spirit can convict a person when he's wrong. क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो एक व्यक्ति को घायल कर सकते हैं कि वो गलत है। If they are wrong, Holy Spirit convict them. Leave it to Holy Spirit to convict them. Why should we try to justify? अगर वो गलत है, पवित्र आत्मा जी खुद उसको कायल करेंगे, हमें क्यों उसको जोर जबरदस्ती से कायल करना है। Also, he will lead them into all truth. The Holy Spirit. और पवित्र आत्मा जी उनको सच्चाई में सत्य की ओर लेके जाता है। John 16:13 says, the Spirit of truth will lead us into all truth. और यूहन्ना 16 अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा है कि पवित्र सत्य का आत्मा उनको सही मार्ग बताएगा। Now the reality is, everybody in the body of Christ is not living according to the Spirit. तो ये बात सच है कि हर एक व्यक्ति जो शरीर में जी रहा है वो आत्मा के अनुसार नहीं जी रहा। Many people who are believers in Christ, who are going to heaven, no doubt, they live according to the flesh. बहुत से विश्वासी जो इनका उद्धार भी हो गया है, पर वो आत्मा से नहीं शरीर के अनुसार जी रहे हैं। And the spirit and flesh are always in conflict. The spirit and flesh are always in conflict. और शरीर और आत्मा जो है हर दम आपस में विरोध करते हैं। There will be difference of opinion. और ये सिर्फ जो है विचारों का फर्क है। We should not fight about it. इसलिए हमारे को उसमें झगड़ा नहीं करना। Take the church in Corinth. हम कुरिन्थ की कलीसिया को देखें। And the church in Corinth had all the gifts of the Holy Spirit. और कुरिन्थ की कलीसिया में सारे आत्मा के जो दान थे उनको मिले हुए थे। They were enriched in all their speaking and all their knowledge. और अपनी बातों में, अपने ज्ञान में पूरी तरह से संपूर्ण थे। But the Apostle Paul writes to them in the 3rd chapter of 1 Corinthians. पौलुस जब उनको लिखता है 1 कुरिन्थियों के 3रे अध्याय में, My dear brothers, I cannot call you spiritual, I call you worldly, mere infants in Christ. वर्स ब्रदर, I cannot call you spiritual, I'm calling you worldly, you are mere infants in Christ. और वो कहता है कि तुम जो है हे भाइयों, मैं तुमसे इसी रीति से बातें कर सका जैसे आत्मिक लोगों से नहीं कर सका, क्यों जैसे आत्मिक, परंतु तुम्हारे जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह से में बालक हैं। I gave you milk, not solid food. मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया। But you're not ready for it. तुम उसके लिए तैयार नहीं थे। Indeed, you're still not ready. बल्कि तुम अभी भी तैयार नहीं हो। But there's jealousy and quarreling among you. Are you not worldly? Are you not acting like mere men? और जब तुम में डाह और झगड़ा है, क्या तुम शारीरिक नहीं, मनुष्य की रीति पे नहीं चल रहे? Now these people had all the gifts of the Holy Spirit. और इन लोगों के पास सारे पवित्र आत्मा के दान थे।
When someone is manifesting the gifts of the Holy Spirit, we think, oh, he's a very spiritual person. और अगर कोई व्यक्ति आत्मा का दान को दिखाता है तो हम कहते हैं बड़ा आत्मिक व्यक्ति है। But Paul said, no, I can't call you spiritual. पर पौलुस कहता है कि मैं तुम्हें आत्मिक नहीं कह सकता। When there's quarreling and jealousy among you, are you not like worldly people, carnal people? How can I call you spiritual? जब तुम्हारे में झगड़े हैं, वाद विवाद है, तो मैं तुम्हें कैसे आत्मिक व्यक्ति कह सकता हूँ? क्या तुम शारीरिक व्यक्ति नहीं हो? So our gifts don't define us. We are defined by the life we live as we imitate Jesus. तो हमारे दान हमारे बारे में वो बताते नहीं है, पर हम जो अपने जीवन को किस तरह से जी रहे हैं वो बताता है कि हमारा कैसा जीवन है। The Lord says you will know them by the fruit. प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम उनके फलों से उनको पहचान सकते हो। The fruit of the Spirit does not include quarreling. और पवित्र आत्मा के जो फल हैं उसमें झगड़ा नहीं है। On the other hand, we go by the peace of God, not quarreling. और उसके विरोध में, विपरीत में हम परमेश्वर की शांति के साथ चलते हैं, झगड़े से नहीं। Jealousy, envy, and quarreling hinder our spiritual growth. और ये जलन, झगड़ा और वैर विरोध जो है ये हमारी आत्मिक वृद्धि को रोक देता है। So we should not quarrel and leave it to God to vindicate us. हमें इसलिए झगड़ा नहीं करना चाहिए और परमेश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए कि वही हमारी छुड़ौती करे। Then in the book of James, with 4th chapter, we read first few verses. याकूब 4 अध्याय की पहली कुछ आयतों में हम पढ़ते हैं, What causes fights and quarrels among you? कि तुम में क्या किस कारण से लड़ाई और झगड़े होते हैं? Don't they come from desire that battle within you? क्या उन सुख विलास से नहीं जो तुम्हारे आंगों के में लड़ते भिड़ते हैं? You want something, you don't get it. तुम लालसा तो रखते हो, तुम्हें मिलता नहीं। You kill and covet. हाँ करते हो, हत्या करते हो। You don't have what you want. और तुम जो प्राप्त करना चाहते हो नहीं प्राप्त कर सकते। You quarrel and fight. और तो फिर तुम झगड़ा करते हो, लड़ते हो। We don't have because you don't ask God. तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम परमेश्वर से मांगते नहीं हो। And you ask and don't receive because you ask with wrong motives. और तुम मांगते हो और पाते नहीं हो क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। One more reason why people quarrel is because they find that others have something they don't have. और एक कारण ये भी है लोगों का झगड़ा करने का कि वो देखते हैं उसके पास तो ये सब है, मेरे पास तो ये सब नहीं है। They are envious, जलन होने लगती है, jealous, चिढ़ हो जाती है and start fighting. और फिर वो झगड़ा कर देते हैं। But then James says, you ask God. पर याकूब कह रहा है तुम परमेश्वर से मांगो। Why do you fight among yourselves? आपस में क्यों झगड़ रहे हो? Ask God. मांगो। And when you ask, why you sometimes don't receive? और जब तुम मांगते हो तो तुम्हें क्यों नहीं मिलता? Because you ask with wrong motives. तुम बुरी मनसा से मांगते हो। It's very important for us to ask God for the right things with the right motivation. तो बहुत जरूरी है हम परमेश्वर से सही तरीके से सही चीज को सही मनसा से मांगे। Sometimes we can ask God for the right thing with the wrong motivation. पर हम सही चीज को गलत मनसा से परमेश्वर से मांग सकते हैं। Even when we ask God for the gifts of the Spirit, और जब हम परमेश्वर से आत्मा के दान मांगते हैं तब भी, for wisdom, for faith, for any of the gifts of the Spirit, आत्मा के सारे दानों में से कोई भी दान क्यों ना मांगते हो, the motivation could be to be showing off to other people. I've got this gift. और उसका मनसा ये हो सकती है मांगने की हम लोगों को दिखाएं, देखो मेरे पास ये दान है। That's not the right motivation. सही मनसा नहीं है मांगने की। The motivation must be that through the gifts God gives you, which you ask of God, that you glorify God and edify His people. तो हमारी मनसा जो दान मांगने की ये होनी चाहिए कि परमेश्वर को महिमा मिले और परमेश्वर की कलीसिया की बढ़ोतरी हो। So Bible is very, very simple in these matters. बाइबल जो है इस मामले में बिल्कुल साफ है। It's not rocket science. It's very simple. It's for children. बहुत साधारण शिक्षा है, बच्चों के लिए भी है, इसमें कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं है समझने के लिए। All of us can understand very easily. और हम सब इसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं। Psalm 119 verse 130 says, भजन 119 उसकी 130वीं आयत में लिखा है, the unfolding of His words gives light. It gives understanding to the simple. और तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। So when we become like children, we can understand these things, then we simply implement that, and we'll see how wonderfully our life becomes. A wonderful, fruitful. इसको हम जब समझेंगे, इन बातों को हम समझेंगे कितना आसान है ये सब, और कितना हमारे जीवन जो है इसको समझने के बाद कितना हम इससे आशीष पाते हैं। One reason why we want to fight with others and prove our point is because of ego. और एक बात हम लोगों से झगड़ते हैं और अपनी बातों को सही साबित करना चाहते हैं, वो है हमारा जो इसमें कि मेरी जो मेरी इज्जत की बात, मेरा our own pride, मेरा अपना अहम। Now, because of that pride, we want to convince them we are right and they are wrong.
और अपने अहम की वजह से हम उनको ये साबित करना चाहते हैं कि मैं सही हूं, तुम गलत हो। When we humble ourselves, then God will vindicate us. He will justify us. जब हम अपने आप को नम्र करते हैं, परमेश्वर हमारी छुड़ौती करेगा, वो हमें बचा, हमारी बात को सही साबित करेगा। Take Moses, उदाहरण के लिए मूसा, very humble man, ही नम्र व्यक्ति, more humble than anybody else on the face of the earth. पूरी पृथ्वी में उसके समान कोई और नम्र व्यक्ति नहीं था। Numbers chapter 12 verse 3 says about that. नंबर 11वां अध्याय उसकी तीसरी आयत में लिखा है। Now, the previous verses talk about how his sister and brother Miriam and Aaron, they spoke up against Moses. हम देखते हैं कि उससे पहले कि उसकी जो बहन और भाई थे, मरियम और उसका भाई जो था, उन्होंने उसका विरोध किया। Has God spoken to you only? Has he not spoken to us also? क्या परमेश्वर ने तुझसे ही बात करी, हमसे बात नहीं करी? They are trying to say, as if you are superior to us, has he not spoken to us? Only to you is speaking. क्या तू अपने आप को ज्यादा समझता है कि परमेश्वर तेरे से ही बात करेगा, हमसे बात नहीं करेगा? And they began to try to pick a quarrel with him because of what? Because of his wife, Cushite wife. He married an Ethiopian. और उससे झगड़ा करने लगे सिर्फ किस लिए, क्योंकि उसकी मूसा ने एक कूशी स्त्री से शादी करी थी। Nothing to do with the teaching that Moses had. Nothing to do with that. और उनका झगड़ा किसी भी जो मूसा की शिक्षा है उसके विरोध में नहीं था। It's nothing to do with God speaking to Moses. It is about his wife. और इसमें भी नहीं कि परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है, झगड़ा इस बात का कि उसकी पत्नी कूशी है। He married a lady from Ethiopia. Cush is Ethiopia. और जो कूशी है इथोपिया है, इथोपिया से की स्त्री से उसने शादी करी थी। They couldn't accept her, so they fought with Moses. और क्योंकि वो उसको स्वीकार करने नहीं पाए, इसलिए मूसा में नुक्स ढूंढने लगे। Has God spoken to you only? Has he not spoken to us also? क्या परमेश्वर ने केवल तुझसे बात करी, हमसे बात नहीं करी? And Moses did not respond. और पर मूसा उसका कोई उत्तर नहीं देता। And God called all three of them और परमेश्वर ने उन सबको एक साथ बुलाया to the tent of meeting. और जो तंबू था वहां पे सबको बुलाया एक साथ। Miriam, Aaron, and Moses, all three were called. और मरियम, हारून और ये मूसा, तीनों को बुलाया गया। And God called Miriam and Aaron into the tent और मरियम को और हारून को परमेश्वर ने अंदर बुलाया, and spoke to them. उनसे बात करी When a prophet is among you, I speak to him in visions and dreams. कि तुम्हारे बीच में एक नबी है और मैं उससे दर्शन और के द्वारा बात करता हूँ। Not so with my servant Moses. पर मूसा के साथ ऐसा नहीं है। With him I speak face to face. उससे तो मैं आमने सामने बात करता हूँ। And were you not scared to speak against him? How come you're not scared to speak against Moses? God is asking Miriam and Aaron. परमेश्वर उनसे बोलता है कि तुम मेरे दास से ऐसी बात करके, विरोध में ऐसी बात करके, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? God took up Moses' case. Moses kept quiet, didn't retaliate, didn't cooperate with them to quarrel. परमेश्वर ने मूसा के बात की लड़ाई को अपने हाथ में लिया। मूसा ने कोई झगड़ा नहीं किया। He kept quiet. Then again we find in 16th chapter of Numbers. और गिनती के 16वें अध्याय में हम देखते हैं when his cousin Korah rebelled against Moses. जहां उसका जो एक रिश्तेदार था कोरा, वो मूसा से झगड़ा करने लगा। Korah was his first cousin. और कोरा उसका पहला कजन था। And along with 250 people, they rebelled against Moses. और उसके साथ 250 लोग और थे। इन सब ने मिलके मूसा का विरोध किया। Are you the only one holy? Are we all not also holy? और कहने लगे क्या तू ही अकेला पवित्र है, हम सब पवित्र नहीं है? All the whole assembly is holy. Why do you think only you are holy? जब पूरी मंडली पवित्र है, तू अकेला क्यों अपने आप को पवित्र बता रहा है? Again, Moses did not retaliate. और यह सुनकर भी लिखा है कि मूसा ने कुछ भी परवाह नहीं किया, उनका विरोध नहीं किया। And Numbers 16 chapter verse 4 says he lay prostrate before God. और चौथी आयत में गिनती 16वें अध्याय में लिखा है, यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिर गया। And God vindicated Moses. और परमेश्वर ने मूसा को छुड़ाया। The tragic consequences to Korah and the 250 people were followed by the earth. The earth opened them and swallowed them. और ये कोरा और उसके जो 250 साथी थे, उन सब का बड़ा एक दुखद अंत हुआ। पृथ्वी फट गई और वो सारे के सारे अंदर समा गए। The simple lesson we learn from all this is Lord's servant must not quarrel. इससे एक सीधी सी बात हम सबक सीखते हैं कि परमेश्वर के सेवक को झगड़ा नहीं करना है। When you're serving God in a sincere way, remember He is for you. अब अगर हम परमेश्वर की सेवा सच्चे मन से कर रहे हैं तो याद रखें परमेश्वर हमारे लिए है। And Romans chapter 8 verse 31 says, if God be for us, who can be against us? और रोमियो 8:31 में लिखा है, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? When we walk in the ways of God, He is with us and He will make even our enemies live at peace with us. और अगर हम परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं तो वो हमारे साथ है और हमारे विरोधियों को भी हमारे साथ शांति के साथ रहने के लिए A very simple instruction for us today. We should apply in our lives. Lord's servant must not quarrel. Ask Him wisdom, ask Him love,
We won't quarrel, we will wait for God to vindicate us. तो हम परमेश्वर के जो लोग हैं, हमारे बड़ी सी तरह से शिक्षा है कि हमें झगड़ा नहीं करना, हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है, हमें परमेश्वर के हाथ में सब चीजों को छोड़ देना है, वो हमारी छुड़ौती करेगा। God bless you all. परमेश्वर हम सबको आशीष दे।